सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। Good morning. Now, today's I will discuss Coulomb's law. Most important topic, Coulomb's law, which is class 12 subject physics. Coulomb's law. What is Coulomb's law? सबसे पहले हम Coulomb's law के बारे में डिस्कस करेंगे. Coulomb is the name of scientist who gives a very good relation between two charges. So, according to Coulomb's law, the force of attraction or repulsion is directly proportional to product of 2-point charges and inversely proportional to square of distance between them. These forces act along the line joined between two charges. So this is the statement. Write down. डाल लीजिए बच्चों. According to Coulomb's law, the force of attraction or repulsion is directly proportional to product of 2-point charges and inversely proportional to square of distance between them. These forces act along the line joined between two charges. So what is this statement? Says that 2-point charges are kept Q1, Q2, a very small distance which is small r. Q1, Q2, 2-point charges which are placed very small distance small r. So according to definitions, when 2-point charges are placed some distance which exerts some force, these forces are either attraction or repulsive nature. So these force is directly proportional to product of 2-point charges Q1, Q2 F and inversely proportional to square of distance. So what is distance? R, square of distance. Therefore, combining equation first and second. Equation first और second को combine करें. So force is directly proportional to Q1, Q2 by R square. F equal to K Q1 Q2 by R square. Write down. Force is directly proportional to product of 2-point charges, inversely proportional to square of distance. Combine above equations. Force is directly Q1 Q2 by R square.
F equal to K Q1 Q2 by R square, where completed where K is the proportionality constant. K is the proportionality constant which is called electrostatic force constant, which is called electrostatic force constant. Its value depends on type of medium. Its value depends on type of medium. So K equal to 1 upon 4 pi epsilon, where epsilon permittivity of material medium, epsilon equal to epsilon 0 epsilon r, where epsilon 0 equal to permittivity in free space अथवा air. Its value 8.854 10 power minus 12 coulomb square per Newton meter square. So this is the value of epsilon 0, and what is the value of epsilon r? Epsilon r, it says that relative permeability permittivity, its value equal to 1 for air. These values are different for different medium. Therefore, F equal to K equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 equal to 9 into 10 power 9 Newton meter square per Coulomb square. Put this value, F equal to 9 into 10 power 9 into Q1 Q2 by R square. So this is the force according to Coulomb's law. F equal to 9 into 10 power 9 into Q1 Q2 by R square, Newton. SI unit of force is Newton. So this is the expression how to solve the Coulomb's law. Force F equal to 9 into 10 power 9 Q1 Q2 by R square. इस फार्मूले का यूज हम लोग न्यूमेरिकल में डायरेक्ट करते हैं. 9 into 10 power 9 K की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं, चार्ज दिया जाएगा और डिस्टेंस गिवन रहेगी, तो हम इसको फाइंड कर लेंगे. एंड व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ? कूलॉम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या क्या है? कूलॉम्स लॉ कहां पे वैलिड होगा, कहां पे वैलिड नहीं होगा, ये उसकी लिमिटेशंस है. तो हम देखते हैं इसकी लिमिटेशंस क्या होंगी. लिमिटेशंस क्या क्या है? लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ.
राइट डाउन लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। फर्स्ट लिमिटेशन इसकी है, इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। ये केवल पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। यदि चार्ज जो हमारे यहाँ पॉइंट चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस का क्या मतलब है कि जो हमारे चार्जेस हैं वो डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटे हों, डिस्टेंस के कंपैरिजन में डायमेंशन लेस हो, तो उसे हम कहते हैं पॉइंट चार्ज। इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। दूसरा, इट कैन नॉट वैलिड मोर डिस्टेंस 10 power 15 meter and less distance 10 power minus 15 meter। मीन्स ये जो फोर्स है कूलॉम्स लॉ, यदि डिस्टेंस 10 पावर 15 मीटर से बहुत ज्यादा हो या 10 पावर माइनस 15 मीटर से कम हो तो फिर ये वैलिड नहीं होगा। इससे कम के डिस्टेंस पे ये वैलिड रहेगा, और इससे भी कम यदि डिस्टेंस हो जाती है तो वहां पे न्यूक्लियर फोर्स एक्सर्ट होता है जो 10 पावर माइनस 15 मीटर से कम डिस्टेंस पे वैलिड होगा। सो दिस इज द लिमिटेशंस of Coulomb's law। अब Coulomb's फोर्स एक्चुअल में हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया है यहाँ पे वेक्टर फॉर्म नहीं डिस्कस किया, तो अब हम वेक्टर फॉर्म डिस्कस करने जा रहे हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ Coulomb's law। Coulomb's law का वेक्टर फॉर्म क्या होता है? वेक्टर का फॉर्म का मतलब इसमें फोर्स की पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी अकॉर्डिंग टू चार्ज। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे दो चार्ज रखता हूँ, एक Q1 और एक Q2। अब Q1 चार्ज के कारण Q2 चार्ज पे एक फोर्स लगेगा जिसको हम F21 लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, और 2 के कारण इस पे लगेगा, इसको लिखेंगे F12 वेक्टर। F12 वेक्टर क्या है? फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। Q1 पे Q2 के कारण एक फोर्स लगता है जिसे हम F12 कहते हैं, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। इसी तरह इस चार्ज पे Q2 पे भी एक फोर्स लगेगा Q1 के कारण, तो उसको लिखेंगे F21। F फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। So according to Coulomb's law, force of F21 equal to K Q1 Q2 by R21 का स्क्वायर, that is R21 cap, या इसको R स्क्वायर, R is the distance between 2 point charges, R square R21। So R21 for what? R21 क्या है? It is the unit vector which are represent the direction of force। यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? फोर्स की डायरेक्शन, जिसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। और अब ये कितना होगा? R21 इक्वल टू वेक्टर R अपॉन mod of vector R। So put this value, F21 equal to K
Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इनटू इन प्लेस ऑफ R कैप 21 की जगह पे वेक्टर R अपान मॉड ऑफ वेक्टर R पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर R अपान मॉड ऑफ वेक्टर R। तो F21 हमारा कितना आ जाएगा, K Q1 Q2 बाई, अब ये जो R स्क्वायर है मॉड की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे यदि तो वो R स्क्वायर हो जाएगा। मींस ये R स्क्वायर मॉड की वैल्यू ही है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ R का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ R स्क्वायर मॉड ऑफ R, इसको हम क्या लिख सकते हैं, R क्यूब लिख सकते हैं। और this is the vector R. So this is the vector form of Coulomb's law. F21 equal to, put the value of K, 9 into 10 power 9 Q1 Q2 by R cube in the direction of vector R Newton. So this is the force on Q2 due to charge Q1. Similarly आप देख सकते हैं यहाँ पे Q1 के कारण फोर्स Q2 में इस डायरेक्शन में, और Q2 के कारण फोर्स जो Q1 चार्ज पे लग रहा है वो जस्ट अपोजिट टू द F21। तो F21 और F12 की डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट है। सिमिलरली F21 equal to minus of F12 vector. Therefore, the Coulomb's law follow the Newton third law of motion. Newton third law of motion. What is Newton third law of motion? 11th में आपने पढ़ा है, तो भूल गए हैं क्या? ये तो भूले नहीं होंगे, मुझे पता है। What is Newton third law of motion? There are every action equal and opposite reaction. यदि हम किसी बॉडी में फोर्स लगाते हैं तो बॉडी भी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स लगाती है, उसे हम कहते हैं एक्शन टू रिएक्शन। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि कूलॉम्स लॉ फॉलो, कूलॉम्स लॉ follows the Newton's third law of motion। कंपटीशन में डायरेक्ट पूछा जाता है कि कूलॉम्स लॉ फॉलोज विच लॉ, न्यूटन्स लॉ मोशन। कूलॉम्स लॉ जो है वो न्यूटन के किस लॉ को फॉलो करता है। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं तो कूलॉम्स लॉ न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, आप देख सकते हैं। तो लीजिए ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। अब इसमें कुछ एग्जांपल करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए एग्जांपल पे हमारे पास एक स्क्वायर है, जो चार्जेस रखे हैं Q1 Q2 Q3 Q4, ऑल द चार्जेस आर इक्वल Q, सभी चार्जेस Q के इक्वल हैं, और हमें A B C D फाइंड द फोर्स एट एनी वन वर्टेक्स। किसी भी वर्टेक्स पे आपको क्या फाइंड करना है, फोर्स। चलिए पहले हम वर्टेक्स पे फोर्स फाइंड करते हैं। माना कि फोर्स फाइंड करने के लिए डिस्टेंस जानना जरूरी है। मैं इनके डिस्टेंस A ले लेता हूं, स्क्वायर है तो सबके डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है। तो इसका जो डायगोनल होता है कितना हो जाएगा, A√2, इसका भी डायगोनल A√2। अब हम फाइंड करेंगे फोर्स ऑन एट पॉइंट सी पे। तो ध्यान से देखें, एक चार्ज यहां पे है, इसके कारण इसकी फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी। एक चार्ज यहां है, इसके कारण इसकी फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी। इसको मैं लिख लेता हूं FBC,
इसको लिख देता हूं एफ डी सी, और एक फोर्स यहाँ पे है, इसके कारण इसकी फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, ये हो जाएगा एफ एस। ठीक, अब ये दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, जिसको हम एफ नेट फोर्स कहेंगे। जो नेट फोर्स है वो इसी डायरेक्शन में होगा। ओके, तो ध्यान से देखें, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ एफ बी सी कितना होगा भाई, एफ बी सी कितना होगा, के क्यू क्यू, वो चार्ज इक्वल तो क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है इसकी a, सो a स्क्वायर, के क्यू1 क्यू2 बाई a स्क्वायर, r स्क्वायर की जगह a स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह एफ डी सी कितना है, क्यू क्यू, यहाँ पे भी k क्यू स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा a स्क्वायर। इसी तरह एफ ए सी फाइंड करेंगे, एफ ए सी कितना है, k क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस इसकी कितनी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस टोटल डायगोनल होगी। यहां तो अभी तक ये साइड था, लेकिन यहां से यहां तक की डिस्टेंस टोटल डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितनी होगी, a रूट 2 का स्क्वायर, a रूट 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा k क्यू स्क्वायर बाई a स्क्वायर, 2 मींस 2a स्क्वायर। ओके, यहां तक क्लियर समझ में आया। हमने क्या किया, एक स्क्वायर कंसीडर किया है जिसके वर्टेक्स पे हमने चार्ज क्यू लेट किया है, क्यू 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 क्यू, और उसके किसी भी वर्टेक्स पे हमें फाइंड करना है फोर्स। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, जिसके कारण यहां पे हमें उसका रिजल्टेंट फाइंड करना पड़ेगा। यदि कई सारे फोर्सेस एक्ट करते हैं किसी पॉइंट पे, तो वहां पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो होता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि सम ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एट पॉइंट, तो हमारा यहां से नेट फोर्स क्या होगा हम ये जानना चाहते हैं। नेट फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ ए सी प्लस इन दोनों का रिजल्टेंट BC और DC का, तो रिजल्टेंट फोर्स ऑफ BC DC, तो पहले रिजल्टेंट फोर्स BC और DC का हम फाइंड कर लेते हैं। तो BC और DC का रिजल्टेंट स्क्वायर रूट ऑफ, हमने फार्मूला पढ़ा है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, क्या फार्मूला पढ़ा है, दो फोर्स F1 स्क्वायर, तो FBC स्क्वायर प्लस FDC स्क्वायर प्लस 2FDC FDC cos थीटा। ठीक है, थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है एग्जैक्टली। ये फोर्स और ये फोर्स यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, इन दोनों के फोर्स के बीच में 90 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा 90, तो cos 90 कितना होगा भाई, 0 हो जाता है। तो रिजल्टेंट हमारा BC और DC कितना बन जाएगा, FBC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पे वैल्यू दोनों सिमिलर फोर्सेस हैं, KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर प्लस KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ऐड कर लें KQ, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, 2KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये RBC DC अंडर रूट 2KQ बाई A, ये हमारा फोर्स आ जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर करना है, यहाँ पे स्क्वायर करना है,
FBC स्क्वायर, तो BC DC रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, ध्यान से देखें, दोनों वैल्यू सेम है तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा √2 KQ²/A²। दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, अब हमें एफ नेट फाइंड करना है। नेट फोर्स इक्वल टू FAC प्लस RBC और DC, ऐड कर दीजिए यहाँ पे। नेट फोर्स FAC कितना है भाई, KQ²/2A² प्लस ये है √2KQ²/A²। यहाँ से KQ²/A² हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1/2 प्लस √2, इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? तो इस तरह से हम किसी भी स्क्वायर के वर्टेक्स पे फोर्स फाइंड कर सकते हैं। अब यही चीज मुझे यदि एग्जांपल लेते हैं, इसके सेंटर पे फाइंड करना हो, कहां फाइंड करना हो, सेंटर पे, राइट डाउन, लिख लीजिए, कंप्लीटेड। इसके बाद यही एग्जांपल मैं यदि इसके सेंटर पे फाइंड करूं फोर्स, तो इसके सेंटर पे क्या होगा, सेंटर पे क्या होगा फोर्स। आप देख सकते हैं इसमें सभी चार्जेस हमारे Q हैं, Q Q Q Q, इसके सेंटर पे फोर्स फाइंड करना है। ये चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा इधर होगा, मानता हूं F, मान लो पॉइंट O है, FAO, इस चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, FBO, इस चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, FCO, और इस चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, FT। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे इसके कारण जो फोर्स इधर लगेगा और इसके कारण फोर्स इधर लगेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसी तरह इसके कारण इधर और इसके कारण इधर, इसका मतलब नेट फोर्स एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर व्हेन केप्ट अ पॉइंट चार्ज Q, तो यहां पे एक चार्ज रखा हमने Q, इस पे नेट फोर्स क्या होगा, सेंटर ऑफ स्क्वायर इज 0। यदि सभी चार्जेस सेम साइन के हों, चाहे वो सभी चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव हों, चाहे निगेटिव निगेटिव हों, तो क्या होगा, नेट फोर्स हमारा 0 होगा। ओके, लिख लें इसको, कंप्लीटेड। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपको सेल्फ ट्राई कर सकते हैं एग्जाम्पल्स अपने से। कूलॉम्स लॉ पे 2 पॉइंट चार्जेस, यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लेता हूं, +9A और +A 2 पॉइंट चार्जेस हैं जो 8 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। +9A और +A, there are 2 point charges which are kept at a distance 8 meter apart, and what is the equilibrium point when a charge Q placed
बिटवीन चार्जेस। हमें एक पॉइंट Q कंसीडर करना है और उस चार्ज को इस तरह से रखना है कि वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन में हो। तो मैं मानता हूं कि वो चार्ज 9e डिस्टेंस है, x डिस्टेंस में प्रेजेंट है, q डिस्टेंस, और तो x ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8 - x। ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन का मतलब है कि इसमें एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे फोर्स 0 हो जाएगा, नेट फोर्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके कारण फोर्स लिखते हैं F के 9e इंटू Q अपान यहां से यहां तक की डिस्टेंस x², F1 फोर्स मान लेता हूं, और इसके कारण F2 फोर्स के Q इंटू फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, देन F1 इक्वल टू F2। तो दोनों फोर्स को हमने इक्वल कर दिया, K 9e Q अपान x², K E Q अपान 8 - x²। इसको सॉल्व करके हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड का, तो 3/x 1/8 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3 × 8 - x इक्वल टू x, यहाँ से इस तरह से, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 माइनस, या प्लस माइनस भी आप ले लें, 24 माइनस 3x इक्वल टू x, 24 इक्वल टू x प्लस 3x, तो 4x इक्वल टू 24, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 मीटर, x इक्वल टू 6 मीटर। तो इसका जो 6 मीटर है वो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर, 8 मीटर के अंदर है, इसका मतलब ये सही डिस्टेंस है। हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो x इक्वल टू 6 मीटर मीन्स 9e चार्ज से 6 मीटर के डिस्टेंस, और e से कितना, 2 मीटर हो जाएगा। मीन्स जिस चार्ज जितना बड़ा होगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन उतना लार्ज होगा। इसी कारण से जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो पॉइंट E के ज्यादा नजदीक मिल रहा है, यहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यदि लाइक चार्जेस हैं तो इक्विलिब्रियम पॉइंट बिटवीन मिलेगा, और यदि अनलाइक चार्जेस हैं तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आउटसाइड ऑफ द टू चार्जेस मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना है। यदि यहाँ पे ये माइनस हो जाता तो जो भी इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो या तो इधर मिलता या तो इधर मिलता। अब ये इस बात पे डिपेंड करता है कि किसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन ज्यादा होगा। तो इसके कारण फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा होगा, तो यदि इधर हो जाएगा तो इसके कारण फोर्स ऑफ रिपल्शन बहुत दूर हो जाएगा, इधर हो जाएगा तो इसके कारण यहाँ पे मींस जो नेगेटिव साइड की वैल्यू जो छोटी होगी उधर आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाएगा, ये फिक्स है। ओके, थैंक यू।